हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज का जो टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो मैंने कल पढ़ाई थी, आधा पार्ट लिया था, तो उसको आगे हम अब कंप्लीट करेंगे। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कल टेस्टिस तक हमने डिस्कस किया था। तो आज भी कल हमने जो टेस्टिस को डिस्कस किया था वो टीयर्स ऑफ टेस्टिस, और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे वो है एलएस ऑफ टेस्टिस। एलएस ऑफ टेस्टिस मतलब लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। तो यहाँ पर मैं ये लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन टेस्टिस का ड्रॉ कर रही। दिस इज टेस्टिस, सी longitudinal section of testes. So internally testes is divided into many compartments, and these compartments are called as testicular lobules. Near about 200 lobules are present in each testis. So these are lobules, and each compartment is called as testicular lobules. So these are lobules. Testis is covered by a layer of collagenous tissue, and that is called as tunica albuginea. So this is tunica albuginea. So this layer is called as tunica albuginea. So tunica albuginea is the outermost layer of testes. These are the fibers of tunica albuginea present inside the testes, which divide testes into many compartments, and these compartments are called as lobule. So in each lobule coiled tubules are present. These tubules are called as seminiferous tubules. तो मैं ये ट्यूब्यूल्स को ड्रॉ कर रही। एक लोब्यूल में कम से कम 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकती है। तो ये सब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। एलएस में ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इलोंगेटेड दिखती, और टीएस अगर लिया तो यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कैसी दिखती, राउंडेड दिखती। तो दीज आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. And seminiferous tubules form network of duct that is called as retitestes. So these are seminiferous tubules which are present inside the lobules. So seminiferous tubules form network of duct on the posterior surface of testes, and this network of duct, this is network of duct which is formed on the posterior surface of testes, and this is called as retitestes. This is called as retitestes. Retitestes. Then 12 to 20 ducts from this retitestes form vasa efferentia. So these are vasa efferentia. Vasa efferentia. So here we will give label, that is vasa efferentia.
Then this vasa efferentia, see, this vasa efferentia form a long coiled duct, and this long coiled duct is called as epididymis, which lie on the surface of testes. So this is called as epididymis. Epididymis has three parts. This part, anterior part, is called as caput epididymis, that is head of epididymis. Then middle part of epididymis is called as corpus epididymis, and this posterior part of epididymis is called as cauda epididymis. This is called as cauda epididymis. This is LS of testes, and ducts which are present inside the testes are called as accessory ducts. फिर से एक बार इसको दोहराते हैं. एलिस ऑफ टेस्टिस मतलब ये हो गया लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस. इसमें टेस्टिस इज कवर्ड बाय a layer of collagenous tissue that is called as tunica albuginea. ये जो ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया है, ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया के ये पार्टीशंस जो टेस्टिस के अंदर बनाए हैं ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया ने, ये पार्टीशंस की वजह से अंदर से जो टेस्टिस है वो बहुत सारे कंपार्टमेंट में डिवाइड हुई. ये जो कंपार्टमेंट दिखाए हैं मैंने, ये each compartment is called as lobule. So many lobules are present inside the testes. Near about 200 lobules are present in each testis. In these lobules, coiled tubules are present. Coiled tubules are present in each lobule, and that tubules are called as seminiferous tubules. These tubules are called as seminiferous tubules. Seminiferous tubules. So these are seminiferous tubules, and this is vasa efferentia. ये लेबल नहीं दिख रहा है इधर से, तो यहाँ ड्रॉ करते, यहाँ लिखते vasa efferentia. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से यहाँ पर एक डक्ट का नेटवर्क फॉर्म हुआ. मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन हो रही है यहाँ पर. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो फाइन डक्ट है, उस फाइन डक्ट का यहाँ पर जो नेटवर्क फॉर्म हुआ, दैट इज़ कॉल्ड एज रेटी टेस्टिस. रेटी टेस्टिस की 12 to 20 ब्रांचेस जो है, रेटी टेस्टिस की जो 12 to 20 ब्रांचेस है, उस 12 to 20 ब्रांचेस ने बनाया भाषा इफ्रेंशिया. अब ये भाषा इफ्रेंशिया से बन गया ये एक लॉन्ग एंड कॉइल्ड डक्ट और ट्यूब्यूल that is called as epididymis, and epididymis lie on the surface of testis. See, epididymis has three parts. This is head of epididymis, this is middle part of epididymis, and this is tail of epididymis. Cauda means tail. So head of epididymis is called as caput epididymis. Then middle part of epididymis is called as corpus epididymis, and this function of epididymis is maturation of sperm takes place inside the epididymis. स्पर्म यहाँ पर एपिडिडाइमिस में मैच्योर होते. तो ये समझ में आ गए तीन पार्ट्स एपिडिडाइमिस के. कैपुर एपिडिडाइमिस, ये मिडल पार्ट जो है एपिडिडाइमिस का, दैट इज़ कॉल्ड एज कॉर्पस एपिडिडाइमिस, और ये जो लोअर पार्ट है एपिडिडाइमिस का, उसे हम टेल बोल सकते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा कॉडा. कॉडा मतलब टेल, कॉडा एपिडिडाइमिस. ये जो एपिडिडाइमिस है
ये टेस्टिस के बाहर निकला इस तरह से, और ये असेंड हो रहा, मतलब ऊपर जा रहा, और ये टेस्टिस से बाहर निकलने के बाद ये जो डक्ट है इसे बोलेंगे वासा इफ्रेंशिया। अब ये एक वास डिफरेंस एक है ना, तो इसे बोलेंगे वास डिफरेंस। अगर दो है तो दोनों को बोलते हैं वासा डिफरेंशिया, लेकिन एक है तो उसे बोलेंगे वास डिफरेंस, सॉरी क्या बोलेंगे उसे, वास डिफरेंस। दो है तो वासा डिफरेंशिया, मतलब वास डिफरेंस क्या हो गया इसका, सिंगुलर नंबर। और ये जो वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस एब्डोमेन में एंटर होगी, इट विल असेंड एंड एंटर इनटू द एब्डोमेन थ्रू इंग्यूनल कैनाल। कहाँ से एंटर होंगी, इंग्यूनल कैनाल से। ये मिटा दिया अभी, इसका एक पार्ट है, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पार्ट बता देती इसमें। कभी कभी क्या होता है कि देखो बेटा, जैसे ये एब्डोमेन है, एब्डोमेन में मैंने यहाँ पर बताया था कि ये है इंग्यूनल कैनाल। क्या है ये, इंग्यूनल कैनाल है, और ये स्क्रोटम है। स्क्रोटम बाहर से एक दिखता, लेकिन अंदर से पार्टीशन है स्क्रोटम में दो। तो ये इधर इस चेम्बर में एक टेस्टिस है और इस चेम्बर में एक टेस्टिस है। ये देखो एपिडिडाइमिस कंटिन्यू एज अ वास डिफरेंस एंड असेंड, मतलब ये ऊपर जा रहा, और ये लूप फॉर्म करेगा। यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिनरी ब्लैडर, और ये यूरेथ्रा ओपन होता बॉडी के बाहर। यहाँ पर जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज पेनिस। ये यूरेटर्स। तो ये जो वास डिफरेंस है, ऐसे यूरेटर के ऊपर ये लूप फॉर्म करेगा। ये लूप फॉर्म किया, फिर ऐसे आकर ओपन हुआ वो यूरेथ्रा में, लाइक दिस। ये भी ओपन हुआ यूरेथ्रा में। तो ये जो है, जो सपोर्ट दे रहा टेस्टिस को दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मेटिक कॉर्ड। Spermatic cord held the testes. Support the testes. Spermatic cord में मिलेंगे अपने को ब्लड वेसल्स, नर्व्स, ये सब कहाँ रहते, स्पर्मेटिक कॉर्ड्स में। जो मुझे पॉइंट बताना था वो है, एक डिसीज़ सुना होगा, हर्निया सुना है ना। ये इंग्यूनल कैनाल है। कभी कभी क्या हो जाता कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, जैसे इसके पीछे है, ऐसा इमेजिन करो, ये इसोफेगस है, फिर ये स्टमक, इसोफेगस, फिर ये स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन इसके पीछे। स्मॉल इंटेस्टाइन इज कंटिन्यू इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लार्ज इंटेस्टाइन ओपन इनटू एनस थ्रू ये रेक्टम, इस तरह से। तो क्या होता है, कभी कभी ये जो इंटेस्टाइन का लूप है, वो यहाँ से बाहर आ जाता इंग्यूनल कैनाल से। देखो ये इंटेस्टाइन है ना, ये इंग्यूनल कैनाल से बाहर आ गई। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है किसी बच्चे में। तो ये क्या है, ये हर्निया है, इसे हर्निया बोलेंगे हम। नेक्स्ट पार्ट, टेस्टिस के ऊपर पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, इनकम्प्लीट। टूनिका अल्बुजिनिया के ऊपर पेरिटोनियल मेम्ब्रेन रहता। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, इसका मतलब टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल इन ओरिजिन, टेस्टिस एब्डोमिन में ओरिजिनेट होती, एब्डोमिन में वो
उसका जो टेस्टिस का जो प्रोडक्शन है वो एब्डोमेन के अंदर होता, टेस्टिस का फॉर्मेशन एब्डोमेन के अंदर होता, क्योंकि जो भी ऑर्गन एब्डोमेन के अंदर रहते हैं उसके ऊपर क्या रहता है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। तो टेस्टिस के ऊपर पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, इसका मतलब है टेस्टिस इज एब्डोमिनल इन ओरिजिन। उसके बाद अब हम ये जो एक्सेसरी डक्ट है, एक्सेसरी डक्ट इसको मैंने डिस्कस कर लिया। तो अब हम ड्रॉ करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने ये यूरिनरी ब्लैडर मैंने ऐसा ड्रॉ किया, यूरिनरी ब्लैडर ये नहीं दिख रहा है वीडियो में, थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ड्रॉ करती, छोटी डायग्राम निकालनी पड़ेगी। ये है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर ओपन इनटू यूरेथ्रा। तो ये हो गया यूरेथ्रा, यूरेथ्रा ये, और थोड़ा लंबा निकाल सकते यहाँ तक, ये यूरेथ्रा। यहाँ पर ये टेस्टिस और ये यहाँ पर दूसरी टेस्टिस, थोड़ी, एंड ये जो है ये है वास डिफरेंस। क्या है ये? वास डिफरेंस। यहाँ पर भी ऐसे ही वास डिफरेंस हम निकालेंगे। एपिडिडाइमिस है ये, एंड एपिडिडाइमिस कंटिन्यू एज अ वास डिफरेंस। ये एपिडिडाइमिस कंटिन्यू हो गया एज अ वास डिफरेंस, इस तरह से। यूरिनरी ब्लैडर, तो ये हो गए यूरेटर्स, दीज आर यूरेटर्स। यूरेटर्स। वास डिफरेंस असेंड एब्डोमेन, असेंड इनटू एब्डोमेन। वास डिफरेंस इंग्यूनल कैनाल से एब्डोमेन में एंटर हो गया, एब्डोमेन के अंदर वास डिफरेंस फॉर्म लूप, लूप फॉर्म किया वास डिफरेंस ने। लूप ऑन यूरेटर एंड देन open into urethra, it open into urethra। यहाँ ग्लैंड है एक एट द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ये ग्लैंड है। दिस ग्लैंड इज नोन एज सेमिनल वेसिकल। और इस ग्लैंड का ये जो डक्ट है, डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल बोलेंगे इसको, डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल। यहाँ पर लेबल देना पड़ेगा, सेमिनल वेसिकल, दिस इज सेमिनल वेसिकल। एक्सेसरी ग्लैंड है वो विच इज़ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरेथ्रा जो है, ये वास डिफरेंस जो है, दिस इज वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जो है, वास डिफरेंस ज्वाइन टू डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल। वास डिफरेंस सेमिनल वेसिकल के डक्ट से ज्वाइन हुआ यहाँ पर, और यहाँ एक सोलन पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज एम्पुला। ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज सोलन पोर्शन, इज कॉल्ड एज एम्पुला। तो इसके बाद का ये जो इतना पोर्शन है वास डिफरेंस का, ये this is called as ejaculatory duct। this portion, this part of vas difference is called as ejaculatory duct। ejaculatory duct। यहाँ तक वास डिफरेंस है। वास डिफरेंस ये सेमिनल वेसिकल के डक्ट के साथ ज्वाइन हो गया। उसके बाद का जो पार्ट है वास डिफरेंस का, दैट इज कॉल्ड एज इजाकुलेटरी डक्ट। क्या बोलेंगे इसको? इजाकुलेटरी डक्ट। जैसा इस साइड में है
सेम बिल्कुल इस साइड में भी है, इसको भी ड्रॉ कर लेंगे। ये वाज डिफरेंस, ये वाज डिफरेंस देखो इधर के साइड का। और यहाँ पर ये सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल जो है वो एसेसरी ग्लैंड है इन रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये है सेमिनल वेसिकल और यहाँ पर ये एम्पुला। इस तरह से दिस इज पेनिस, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, एंड स्क्रोटम। स्क्रोटम को ड्रॉ किया। There are 3 accessory glands. Number 1 is seminal vesicle. Number 2 is prostate gland. This is prostate gland. Prostate gland. ये जो ग्रीन कलर से ड्रॉ की है वो भी प्रोस्टेट ग्लैंड भी प्रेजेंट है एट द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। और यूरेथ्रा का भी जो बेस है, यूरेथ्रा के बेस को ये प्रोस्टेट ग्लैंड ने सराउंड किया है। इसे इधर से लेबल कर देंगे। दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड। और तीसरी जो एसेसरी ग्लैंड है वो यहाँ पर होती है, यहाँ पर। दिस इज कॉल्ड एज कॉपर्स ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये जो ग्लैंड है, दिस ग्लैंड इज कॉल्ड एज कॉपर्स ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। इधर लेबल कर देंगे हम कॉपर्स ग्लैंड। आज पूरा ही लेबल कर देंगे। दिस इज टेस्टिस, देन दिस इज स्क्रोटम, एंड दिस इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ये वास्ट डिफरेंस है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये डायग्राम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। देखो दिस यूरेथ्रा, urinary bladder open into urethra and urethra open outside the body through a sphincter called urethral orifice। यहाँ पर ये जो ये है यूरेथ्रा का ये एंड है, that open outside the body through urethral sphincter। in case of male ये जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा is called as urinogenital duct। यूरिनोजेनाइटल डक्ट। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये जो हिस्सा है यूरेथ्रा, इस यूरेथ्रा को यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं क्योंकि यूरेथ्रा इज अ कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एज वेल एज स्पर्म। ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पर यूरिन बनेगी, यूरिनरी ब्लैडर स्टोर यूरिन, एंड यूरिन विल कम्स आउट ऑफ द बॉडी थ्रू दिस यूरेथ्रा एज वेल एज स्पर्म विच इज़ प्रोड्यूस इनसाइड द टेस्टिस। स्पर्म टेस्टिस में प्रोड्यूस होंगे, टेस्टिस से वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में प्रोड्यूस होंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटी टेस्टिस में, रेटी टेस्टिस से वासा इफ्रंशिया में,
वासा इफ्रेंशिया से एपिडिडाइमिस में, और एपिडिडाइमिस से आएंगे वो यहाँ पर वास डिफरेंस में, और वास डिफरेंस से ये स्पर्म कहाँ आएंगे, यूरेथ्रा में। तो यूरेथ्रा जो है दोनों सिस्टम का पार्ट है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी पार्ट है यूरेथ्रा, और एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी पार्ट है यूरेथ्रा इन केस ऑफ मेल। तो यूरेथ्रा इज अ कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एज वेल एज स्पर्म, इट कैरी यूरिन एज वेल एज स्पर्म, एंड हेंस यूरेथ्रा इन मेल इज कॉल्ड एज यूरिनोजेनिटल डक्ट एंड इट इज लॉन्ग। मेल में यूरेथ्रा लॉन्ग है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, इसमें जो 3 ग्लैंड्स है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 ग्लैंड्स है, जिसे बोलेंगे हम एसेसरी ग्लैंड्स। हाँ, इसके पहले जो एसेसरी डक्ट हम बोल रहे थे, कौन से डक्ट है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एसटी लिख दिया मैंने इसको, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इधर जगह है तो यहाँ पर भी लिख सकते, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। उसके बाद है रेटिटेस्टिस, उसके बाद है वासा इफ्रेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वासा डिफरेंशिया, और फिर से सिंगुलर नंबर तो हम बोलेंगे वास डिफरेंस, और लास्ट में क्या है, लास्ट में है यूरेथ्रा। तो ये जो है ये है एसेसरी डक्ट। क्या है ये, एसेसरी डक्ट, सॉरी, दीज आर एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट, इनका क्या फंक्शन है, इनका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट स्पर्म। क्या फंक्शन है इनका, ट्रांसपोर्ट स्पर्म। क्या ट्रांसपोर्ट करेंगे, स्पर्म ट्रांसपोर्ट करते, तो इनका फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म आया बेटा समझ में। जो स्पर्म है, स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में फॉर्म होंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटिटेस्टिस में आएंगे, रेटिटेस्टिस से वो वासा इफ्रेंशिया में आएंगे, वासा इफ्रेंशिया से एपिडिडाइमिस में आएंगे, एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस में आएंगे, वास डिफरेंस से वो यूरेथ्रा में आएंगे। यूरेथ्रा सब जो डक्ट है वो, अब यूरेथ्रा एक ऐसी डक्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि जो सिंगल है यूरेथ्रा, बाकी सब वास डिफरेंस पेयर में है ना, बाकी सब मल्टीपल नंबर में है, लेकिन यूरेथ्रा क्या है, सिंगल है। तो इसको मिटा देती मैं, अगर आपको लिखना है तो वीडियो पॉज करके लिख सकते। और इसके बाद एसेसरी डक्ट जो है, एसेसरी ग्लैंड में सबसे पहले ग्लैंड जो है सेमिनल वेसिकल को यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देती, तो डायग्राम को रखना ही पड़ेगा। यहाँ पर जरा सेमिनल वेसिकल्स कितने, 2 है, मतलब पेयर्ड। इसका लोकेशन है एट द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। पेयर्ड है, प्रेजेंट कहाँ है, एट द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। और ये ओपन कहाँ होते, ओपन इन वास डिफरेंस। किस में ओपन हो रहे, वास डिफरेंस में ओपन हो रहे हैं, है ना। और सेमिनल वेसिकल का जो फंक्शन है, सेमिनल वेसिकल जो ये और ये सैक लाइक है ना, पाउच लाइक है ये जो ग्लैंड है। सेमिनल वेसिकल जो सिक्रीशन सिक्रेट करती, सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रीशन है, सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन में नंबर क्या क्या रहता है, नंबर 1 है फ्रक्टोज है, नंबर 2 है फाइब्रिनोजेन,
एंड इसमें नंबर 3 एक हार्मोन है जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन में ये 3 चीज़ें रहेंगी, फ्रुक्टोज, फाइब्रिनोजेन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। तो एक एक का फंक्शन हम अब डिस्कस करते हैं कि फ्रक्टोज का क्या फंक्शन है, फाइब्रिनोजेन का क्या फंक्शन है और ये प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या फंक्शन है। सबसे पहले फ्रक्टोज जो है ये शुगर है। फ्रुक्टोज क्या है? ये शुगर है, शुगर। तो फिर फ्रक्टोज क्या करता है, जो मूविंग स्पर्म है, मूविंग स्पर्म मतलब वो कहाँ से कहाँ मूव हो रहे, ये स्पर्म। तो ये जो स्पर्म है, सब fructose contains sugar and this fructose provide energy to sperm का जो मूवमेंट है फ्रॉम वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलेंगे और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल के इस रेटी टेस्टिस से वो वासा इफ्रेंशिया में, वासा इफ्रेंशिया से एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस में, और जब ऐसे मूव होते होते जब यहाँ आएंगे तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सिक्रीशन स्पर्म के ऊपर, स्पर्म में मिक्स होगा और उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के सिक्रीशन में जो फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज से स्पर्म को एनर्जी मिलेगी आगे मूवमेंट करने के लिए। नेक्स्ट फाइब्रिनोजेन। इसमें जो फाइब्रिनोजेन है, फाइब्रिनोजेन का फंक्शन है, जब ये फाइब्रिनोजेन क्या करते, फाइब्रिनोजेन कोयागुलेट सीमेन एज बोलस का मतलब तो हम घास बोलते जिसको, नेवाला बोलस। अब यहाँ पर बोलस क्या है ये ज़रा डिस्कस करेंगे। देखो, जैसे ये सीमेन मतलब क्या, सीमेन मतलब स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमिस प्लस सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल प्लस सिक्रीशन ऑफ दिस प्रोस्टेट ग्लैंड प्लस सिक्रीशन ऑफ कॉपर्स ग्लैंड, सब मिला के जो भी है दैट इज कॉल्ड एज सीमेन। तो सीमेन यहाँ तक जो आया है, यहाँ तक स्पर्म और स्पर्म के साथ ये एपिडिडाइमिस का सिक्रीशन यहाँ तक आए। यहाँ पर आने के बाद ये सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रीशन है वो उसके साथ मिक्स होगा। तो उसमें जो फाइब्रिनोजेन है, तो इस सीमेन में जो फाइब्रिनोजेन है, तो सीमेन में फाइब्रिनोजेन का फंक्शन है, ये जो सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रीशन है उसमें जो फाइब्रिनोजेन है, वो फाइब्रिनोजेन जब सीमेन में मिक्स होगा तो फाइब्रिनोजेन क्या करेगा, सीमेन को कोयागुलेट करेगा। तो सीमेन जब कोयागुलेट होगा तो जब भी ये सीमेन बाहर निकलेगा, इसका इजैकुलेशन होगा, इजैकुलेशन मतलब बाहर निकलना। तो जब ये सीमेन बाहर निकलेगा तो एक बोलस के जैसे निकलेगा सीमेन बाहर। नेक्स्ट प्रोस्टाग्लैंडिन है। प्रोस्टाग्लैंडिन एक हार्मोन है। प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन है, जैसे ये यहाँ पर ड्रॉ करती फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूटरस है, फिर ये वजाइना, और ये यूटेरस, यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो रहा है, ये यूटेरस है, देखो बेटा, और ये है वजाइना, ये फैलोपियन ट्यूब्स। ये प्रॉब्लम है, वीडियो में दिख नहीं रहा है, छोटा सा फोकस हो गया ना, यहाँ निकालना पड़ेगा। कुछ समझ में नहीं आता क्या यहाँ निकलती। ये यूटेरस और ये वजाइना, उसके बाद ये फैलोपियन ट्यूब्स दिख तो रही ना, अब फैलोपियन ट्यूब, और ये है ओवरी। तो प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन, जो सीमेन यहाँ पर डिपॉजिट होगा तो उसमें जो स्पर्म है, स्पर्म है इसमें, और ये जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब में यहाँ है एग, दैट इज फीमेल गैमेट।
तो सीमेन यहाँ डिपॉजिट होने के बाद ये जो स्पर्म है, स्पर्म ऐसे मूवमेंट करेंगे फ्रॉम वजाइना टू फैलोपियन ट्यूब अक्रॉस दिस यूटेरस। तो इस सीमेन में जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन है, प्रोस्टाग्लैंडिन विच इज़ प्रेजेंट इन द सीमेन विच इज सिक्रीशन ऑफ दिस सेमिनल वेसिकल contract this female reproductive tract for the movement, for the upward movement of sperm from vagina to fallopian tube for the fertilization of egg। तो इसे बोलेंगे हम, अब ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब कैसा, जैसे यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट होगा, यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये वजाइना कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, तो ये रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो गया। रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब, रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब पहले वजाइना कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद वजाइना कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो स्पर्म है ये आगे 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 इसका मूवमेंट होगा और ये स्पर्म एक की तरफ जाएंगे और एक के साथ फ्यूजन होगा स्पर्म का और फिर फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन हो गया। प्रोस्टाग्लैंडिन इज अ हार्मोन विच इज़ प्रेजेंट इन द सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल and it stimulate reverse peristaltic movement of female reproductive tract, that is from vagina to fallopian tube. For what? For movement of sperm from vagina to fallopian tube towards egg across this uterus for fertilization. So here we have completed this male reproductive system, LS of testes, and we have completed only one ये accessory gland, that is seminal vesicle. नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के जो ग्लैंड्स है, ये प्रोस्टेट एंड ये कॉपर्स ग्लैंड, ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।